ओके दीपिकानंद जी, आप त्रिमंत्र बुलाइए, ये बच्चे लोग सब आपको फॉलो करेंगे। नमो बुद्धाय, नमो मित्राय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्व साहुणं, नमो लोयसाहुणं, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्तारो, सव्व पावप्रणाशनो, सर्वपापप्रणाशनो, मंगलाणं च सवेसिं, मंगलाणं च सर्वेसिं, परमां हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक दादा। जय सच्चिदानंद, दीपक दादा। जय सच्चिदानंद दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय Does सच्चिदानंद। anybody have a question? Ariana, you have a question? No. No. Okay. Anybody else? Then Deepak Dada is going to ask a question if there's no question. Okay. Okay, Deepak Dada, you can question anybody. Question. I have question. Very good, Namya. બોલો. हाँ तो अगर भણવામાં વધારે ધ્યાન આપવું હોય તો શું કરવાનું? Can you talk in English or? हिंदी समझते हो आप? हाँ, yes. Ariana, do you understand Hindi? No. Okay. What is the question? हाँ तो अगर ભણવામાં વધારે ધ્યાન આપવું હોય તો શું કરવાનું? How to increase focus in your studies? Yes. આપણું ફોકસ ક્યાં થાય? જેમાં આપણે ઇન્ટરેસ્ટ આવે ને ત્યાં થાય. अपना फोकस कहाँ होता है? जहाँ हमें इंटरेस्ट आता है वहाँ हमारा फोकस ऐसे ही रहेगा. Where will be our focus? Our focus will always be there where our interest is. So if someone is interested in drawing, then they will always keep drawing. Drawing માં જેને interest હોય, drawing માં સ્વરૂપ, daddy is there, Ariana? Or Dada? Dada. Hey, Oh, Swarup bhai, Jai Satchidanand. unmute, Ariana. Jai Satchidanand. You are still muted. Okay. So, એટલે આપણે શું કરવાનું? ફોકસ વધારવા માટે, ધ્યાન વધારવા માટે, ઇન્ટરેસ્ટ વધારવા માટે મારે ભણવું છે, હું ભણીશ. मुझे पढ़ाई करनी है, मैं पढ़ाई करूंगा. I will study. दादा भगवान मने शक्ति आपो, दादा भगवान आप मुझे शक्ति दो.
ઓ દાદા ભગવાન give me that inner strength to study well. અને એમ પણ કહેવાનું કે મને ભણવાનું બહુ ગમે છે. અંદરથી થાય કે મારે બિલકુલ ભણવું નથી, પણ આપણે બોલવાનું કે મને ભણવાનું બહુ ગમે છે. ઓકે. તને ગમે છે ભણવાનું? હા. સાચું બોલે છે કે ખોટું બોલે છે? હા મેં મમ્મી પપ્પા કહે તો ભણવા બેસી જવું, કોઈ દિવસ એમનેમ નથી બેસતો. એટલે મારું કહેવું એવું છે કે મને એમનેમ જ મમ્મી પપ્પા કહે નહીં અને મારું બાકી હોય તો હું એમનેમ જ બેસી જાઉં. એટલે એવું થવું જોઈએ ને? એ કઈ નહીં થશે. તું ખાલી અંદરથી નક્કી કર કે મને ભણવાનું બહુ ગમે છે. રોજ સવારે નાવા જાય ને ત્યારે પેલું ડબલું પાણી નાખે ને એમ કરીને, પેલું પાણી નાખે ને એમ કરીને કે શાવર ચાલુ કરે તો તારે બોલવાનું મને ભણવાનું બહુ ગમે છે, હું બહુ ભણીશ, દાદા મને શક્તિ આપો. ખ્યાલ આવ્યો? હા. તો એનાથી બધું થઈ જશે. એની મેરેજ આ મેં છે ને હું નાનો હતો ને ત્યારે મેં કરેલું. When I was small, kid like you, I never liked studying. I always liked to play and watch television. During our time, television was not there, but I like to play. Which Kaman always keep watching television. Isn't it? So, એટલે પછી આપણે નક્કી કરવાનું, तय करना है कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है. અંદરથી થાય કે મને બિલકુલ ગમતું નથી, પણ આપણે એનું ઓપોઝિટ બોલવાનું. ઓપોઝિટ બોલવાનું. હા, એ બોલશે કે કમન, will you say that I like study, I will not watch television, only 1 hour a day. See, Yes. whatever you want, you say. When you say, you eventually are going to decide. Khabar padi? Did you understand? Yes. So you must say whatever you want to do. So it's like if you want to become an engineer like your daddy, then you say, I want to become an engineer like my daddy. If you're watching television a lot, 4 or 5 hours a day, then you decide, I will watch television for only 1 hour every day. Dada, give me inner strength. Haryana, how many hours do you watch television? Or your daddy's or mama's phone or daddy's phone? 1 hour? Hey, you're a good girl. Very good. Come on. You have to learn from... I don't keep track, but usually one time I watched for 4 hours. Okay, so now you decide. Okay? You like your parents telling you, your daddy telling you, stop television and all that. You won't like that, isn't it? Yes. So instead of they telling you and you get hurt, you feel hurt, you tell yourself that I will watch television every day, only 1 hour. Okay. Okay. Does that make sense? હેતવી સમજણ પડી? કોઈને ઇંગ્લિશ ના ગમતું હોય, કોઈને હિન્દી ના ગમતું હોય, કોઈને સાયન્સ ના ગમતું હોય, કોઈને મેથેમેટિક્સ ના ગમતું હોય. જે નહીં ગમતું હોય ને તો એના માટે કહેવાનું કે મને આ બહુ ગમે છે. તો આપણે બોલીએ ને એટલે આપણી બિલીફ ચેન્જ થઈ જાય અંદરથી. આપણે એમ કહેવા કરીએ ને મને આ બિલકુલ નથી ગમતું, મને આ બિલકુલ નથી ગમતું, આઈ ડોન્ટ લાઈક ધીસ, તો પછી આપણી અંદર એવું પિક્ચર પડી જાય and you start liking or disliking whatever you say. ખુશ? ખબર પડી? ખબર પડી? બધાને ખબર પડી? આ છોકરીઓનું નામ શું છે કીર્તિબેન? Put your thumbs up if you understand. Namaskar. What's your name?
And what's your daddy's name? Mama's name? બોલો સચિદાનંદ મોટેથી બોલો જય સચ્ચિદાન કે નારું નામ બોલો say your name ઈવા Eva and how about you Eva? Eva and Zaya Eva. Zaya Eva. E-V-A? A-V-A. Right. A-V-A and Raya, R-A-Y-A? Zaya, Z-A. Z-A. Raya. And that's a Okay. Saumil and Kruti's kids. Correct. Saumil. Saumil and? Yeah. Okay, fine. Saumil and a Kruti. Yeah. Your daddy is And very that's- strong. Do you know that? Your daddy is very strong? Bolo, yes or no? Yes, I know him very well for years together. Okay, fine. So whatever you want, you must say that. Okay? He's talking to you, okay? When you say that, you will start believing it. And when you start believing it, you will start living it. Ariana, do you understand? तो ऐसा है Arav have a question. चाहिए आपको जो चाहिए वो आप बोलिए आप बोलेंगे वो आप मानेंगे और जो मानते हैं वो आप जिएंगे ये जीने का बहुत अच्छा रास्ता दादा भगवान ने बताया ओके ओके आरव व्हाट इज योर क्वेश्चन जय सच्चिदानंद स्वामी जी जय सच्चिदानंद स्वामी जी जैसे अगर मेरी पसंद के जैसे कुछ भी चीज बनती है खाने में तो फिर मैं उसको जितना सफिशिएंट होता है उससे ज्यादा खाता हूँ और तो उसको कैसे दूर करें वही जो करना है ना वो आप आंख बंद करके रोज सुबह में बोलेंगे जैसा बोलेंगे ऐसा आप मानेंगे जैसा मानेंगे ऐसा आप जिएंगे वो ऐसा ही नहीं होता है हमने अंदर ही हमने तय किया है कि जो अच्छा है ना जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं बहुत खाऊंगा जी तो ये हो जाता है आप समझे जी स्वामी जी ये जैसा आप तय करेंगे ना ऐसा होता है और ये जो होता है ना कि मैं ज्यादा खाऊंगा करके वो नेचुरली हो जाता है अंदर से जी तो मुझे अच्छा नहीं लगता मैं नहीं खाऊंगा करके हम अंदर से बोल देते हैं अंदर से ही आता है तो ये जब हमें पता चलता है तो हमें समझ के तय करना है कि मुझे 7वीं कलम के अनुसार सभी खाना समरस भोजन खाना है जी तो ऐसा तय करने से फिर वो सामने आएगा ना तो आपको उसका चिड़चिड़ापन नहीं होगा और आप खा सकेंगे क्योंकि शरीर को ये सभी 6 रसों की जरूरत है our body needs all the 6 tastes balanced diet balanced food and if you don't eat anything that is bitter then you're going to fall sick you want to fall sick hey Zaya and Aya Bolo. Eva She's talking. Do you you like want to eat balanced food? you want to fall sick you like to fall sick No. then you must eat that is bitter because sweet things we always like so you must eat chili and bitter both because the bitter thing acts like antibiotic in our body and it fights diseases and you want to become smart and you want to become sharp what is it smart and strong and sharp like your daddy and mommy Yes. and your daddy also Yes. then you have to eat chili you have to eat the bitter stuff also you don't like you may not like but you put it in the rotli and eat so its effect will reduce okay and you have to become strong also so you decide that I will eat bitter food also
I will eat chili food also. Not too much chili, but little chili. Okay? बोलवाना Very good. स्वामी जी, समझ गए आप आरव? स्वामी जी, पर जो जैसे कि अच्छी चीज है तो वो तो खा लेते, पर जो जो पसंद नहीं आती उसका तिरस्कार हो जाता है। मैं निश्चय करता हूँ कि मैं इसका तिरस्कार नहीं करूंगा, मैं इसे खाने की कोशिश करूंगा, पर वो नहीं हो पाता है। तो वो नहीं हो पाता है, वो अलग है, लेकिन मुझे करना है, आप तय करो। यू हैव टू टेल योरसेल्फ। देखो, ये सत्संग में आने का आपने तय किया है तो आप आते हैं। जी You have decided to join this satsang, so you are in the satsang. जी But if you decide not to be in the satsang, you will be playing, you will be doing something else. सत्संग जी दिस इज लाइव Right? सत्संग नो दिस इज सत्संग ચાલે છે દીપકાનંદજી વાત કરે છે એમની જોડે जो करना है वो आप तय करो, बोलो कि मुझे ये करना है। खुश? खबर पड़ी? आर्याना, did you understand? નમ્ય, ખબર પડી ગઈ હવે? મારે ભણવું છે, મારે ડેડીના જેવું બહુ ભણવું છે, તો પછી ભણાશે, ફોકસ કરાશે. ઓકે? जी હા હું પ્રાતઃવિધિ 9 કલમો બધું કરીશ, તો પછી તમે લોકો કરશો. એટલી ખબર પડી? આપણે નક્કી કરીએ ને એવું થાય. તમે કહો કે મારે નથી કરવું, તો પછી નહીં કરશો. એક્સરસાઇઝ નથી કરવી તો નહીં કરે. ખબર પડી? વેરી जी ગુડ. So is it okay for the day? Can we switch over to Mahatma now? वो महात्माओं से बात करें? Okay. Sorry. से जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद। Jai Satchidanand, my blessing. सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आनंद जय सच्चिदानंद। आशीर्वाद, और आप भी मुझे आशीर्वाद देना सब लोग। उसी आशीर्वाद आपसे कि नहीं? आर्याना, will you give blessings or not? Or you only want blessing? If you want, then you have to give. That's the law of nature. Lack of blessing. Very good. Thumbs up. Jai Satchidanand, everybody. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Very good. You are all good, smart, strong guys. See you Okay. tomorrow. Tomorrow Sunday, so see you tomorrow. Okay. ચાલો હવે હું પૂછીશ ને એમને. હા, તો આવી ગયા છે સવાલો. ચાલો સારું, બોલો. ગીતાબેન, જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી સાહેબજી. જય सच्चिदानंद. जय सच्चे बोलिए। आप गुजराती में बोलेंगे हाँ तो मैं समझ लूंगा, फिर मैं हिंदी में बात कर लूंगा. हाँ जी हाँ जी. આ બુક નંબર 35 પાનું નંબર 52 52 11/6/73 73 મુંબઈ. ઓકે. બોલું? हाँ जी સાહેબ. વિતરાગનું આત્મજ્ઞાન જો સહજ થયું, સાચું જ્ઞાન થયું તો એનો છાક ચઢે નહીં. વિતરાગનો આપેલો આત્મા જો એક પ્રગટ થાય તો છાક ચઢે જ નહીં. આ વિતરાગનું આત્મજ્ઞાન છાક ચढ़े नहीं, ये थोड़ी समझाओ. उसका मतलब क्या है कि जो हमने जाना है, पढ़ा है, तो उसका अंदर पावर चढ़ जाता है कि मैं कुछ जानता हूँ, मैं अब समझता हूँ. तो ऐसा है कि वितराग विज्ञान जो है हाँ जी जीवन विज्ञान है. हाँ हाँ हाँ. जीवन विज्ञान का मतलब जो विज्ञान को आप जिएंगे, और वितराग विज्ञान को अगर आप जिएंगे तो फिर उसका पारा, उसका नशा नहीं चढ़ेगा आपको. अच्छा, सारी बात है. ये है, अगर जिएंगे तो उसकी मस्ती में रहेंगे. हकीकत में वो मस्ती नहीं है, लेकिन उसके प्रभाव में जिएंगे, और उस प्रभाव वो ऐसा है कि किसी के साथ आप अलग है ऐसा महसूस ही नहीं करेंगे. हाँ. ऐसा है ना कि वो नशा कब चढ़ता है कि
कि मैं मानता हूं कि ये सब बुद्धू लोग कुछ जानते नहीं है और मैं बहुत कुछ जानता हूं, मैं विज्ञान ने अच्छा समझ लिया है और उसका नशे में मैं घूमता हूं। लेकिन वो सही नहीं है, वो वितराग विज्ञान नहीं है। वितराग विज्ञान तो ऐसा है कि जो विज्ञान जीने से आप सभी के साथ एक रूप हो जाते हैं, किसी के साथ भी भेद दृष्टि रहेगी नहीं, और सभी के साथ प्रेम से आप रहेंगे, ऐसा समझ गए। लेकिन इसीलिए ये जानकारी के तौर पर है तो ऐसा नशा चढ़ेगा, लेकिन अगर समझदारी और जीवन में वो अगर उसका उपयोग हुआ है तो फिर उसका स्वाद ही कुछ अलग है, किसी के साथ भेद पड़ेगा नहीं। अगर कोई कुछ भी करेगा तो हमारा प्रतिभाव आता है, हिंसक प्रतिभाव आता है। ज्ञान नहीं है तो अटैक होता ही है, उसे हिंसक भाव बोलते हैं। फिर दूसरे को दुख देने का भाव होता है, पीड़ाकारक भाव होता है। अगर उससे भी निकल आए बाहर तो अगर आपने कुछ जाना है, कुछ समझा है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ जानता हूं और दूसरों के प्रति आपको अभाव होता है, ये लोग जानते हैं, कुछ जानते नहीं है, देखो मैं कैसे प्रश्न पूछता हूँ वगैरह वगैरह। यानी छाक यानी कि मैं कुछ जानता हूँ એવું થયું, એવું થયું, એવું करेक्ट, હું કંઈક જાણું છું એ मैं બરોબર एनो नशो चढ़े। हाँ हाँ हाँ। और उसका परिणाम यह होता है कि दूसरों के ऊपर आपको अभाव आता है, अभाव, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि आप 2 कदम आगे चढ़ गए ना, 2 कदम ऊपर चढ़ गए तो आपको ऐसा लगता है कि दूसरे सब बेकार है, लेकिन आप भी कभी 2 कदम नीचे थे। हाँ हाँ बरोबर, एकदम छोटे ऐसा है, यानी ये क्रम है, ये सब लोग बढ़ते बढ़ते आ ही रहे हैं। अगर आप आज 2 कदम आगे हो गए हैं तो उसका नशा लेके घूमने मतलब नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं। तो ये समझ से आपको नशा चढ़ेगा नहीं। यानी लघुत्तम रहीने ऊपर जवानु। हाँ, लघुत्तम ओके ओके बोलो, कशो वांधो नहीं। हाँ, लघुत्तम होइने थईने ऊपर जवानु आपणे धीमे धीमे। हकीकत में लघु हुए वही वितराग विज्ञान समझा उसका प्रमाण है। सच्ची बात है, बरोबर। सरस सरस। लघु का मतलब क्या है, आपको ऐसा महसूस होता है कि सब लोग मेरे से बड़े हैं। हाँ बस ये दृष्टि राखवानी छे। उम्र से भी अगर आप बड़े हैं ना, फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मैं तो छोटा हूँ, छोटा मैं तो छोटी हूँ करके लगेगा आप ऐसा। हाँ, बहू के सामने सास होके नहीं जिएंगे, बहू के सामने उसकी बहू है ना ऐसा करके जिएंगे, करके रहेंगे आप। हाँ जी सर, समझ गए? हाँ हाँ समझ गया। वैसे लघुत्तम रह के काम निकाली देवानु आपड़ू। हाँ करेक्ट, तभी आपने महावीर भगवान को जाना, दादा भगवान को समझा, पहचाना, अनुभव किया उनका विज्ञान को। ठीक है, साची बात है। हाँ साहब, बहुत सरस सरस समाधान साहब। जय सच्चिदानंद, खूब खूब अभिनंदन। कश्यप भाई, जय सच्चिदानंद भाई। जय सच्चिदानंद बोलिए। सभी को जय सच्चिदानंद। हाँ जी, वो मुझे ये इसमें नमस्कार विधि में पूछना है कि जो अंतिम की 4 जो विधियां हैं उसके बारे में थोड़ा समझाइए कि जो शुरुआत में बोलते हैं ना कि आखा ब्रह्मांड न जी मात्र न रिय स्वरूप ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार। तो ये मतलब तो इससे हम क्या करते हैं, थोड़ा ये बताइए। फिर अगली जो 3 विधियां उसके बारे में बताइए। हम ऐसा है ना, हमने ब्रह्मांड के बड़े पुरुषों को तो नमस्कार कर दिया। हाँ जी, दादा भगवान को नमस्कार कर दिया, दादा भगवान के भावी तीर्थंकर साहेबों को नमस्कार किया, और फिर महात्माओं को भी नमस्कार कर दिया। फिर आखिर में
ये 4 लाइन आती है कि जो कहते हैं कि ये ब्रह्मांड के जीव मात्र के रियल स्वरूप को, रियल यानी जो शाश्वत है, वो स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। रियल यानी जो कायमी है, परमानेंट है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ, सारे ब्रह्मांड के जीव मात्र के। फिर ये रियल स्वरूप है, यानी जब तक आपको ज्यादा पहचान नहीं है तो ये पहले में सब कुछ आ जाता है कि ये जो जीव मात्र जो है उनके अंदर रियल ऐसे शाश्वत भगवान है, जो उनका सही स्वरूप है, सही पहचान है। वो बाहर से कोई भी जीव हो, प्राणी हो, जीव जंतु हो, लेकिन अंदर वही रियल आत्मा है, रियल भगवान है, शाश्वत भगवान है। अभी आपको इसकी आगे की पहचान होती है तो पता चलेगा कि ओ ये जो रियल स्वरूप है ना, वही भगवत स्वरूप है। भगवत यानी जिनके अंदर दिव्य गुण है, जो दिव्य गुणों से भरपूर है। ये जो रियल स्वरूप है सभी का, वो भगवत गुण वाला है। भगवत गुण यानी प्रकाशमयी, जानने की शक्ति, चेतनता वाला स्वरूप है, चेतन स्वरूप है। और ये शरीर है वो जड़ है। तो आपकी जागृति एक कदम आगे बढ़ती है कि वही रियल स्वरूप को अभी आप भगवत स्वरूप करके देखते हैं और उस भगवत स्वरूप को नमस्कार करते हैं। भगवत स्वरूप से आप देखते हैं, दर्शन करना यानी उनको पहचानना कि ये सिर्फ चींटी नहीं है, ये केवल मच्छर नहीं है, लेकिन अंदर वही भगवत स्वरूप वाले आत्मा है। तो मच्छर को भी आप भगवत स्वरूप से देखेंगे तो फिर ऐसा करके नहीं होगा, समझ गए। फिर जब आपको ज्ञानी पुरुष मिलते हैं और आपको पहचान होती है कि वही शुद्धात्मा स्वरूप है। अभी ये शुद्धात्मा शब्द है ना, उसके ऊपर बहुत बहुत गौर करने की जरूरत है। शुद्धात्मा यानी जो सही पहचान है जीव मात्र की, वह आत्म स्वरूप से उनकी पहचान है और वह आत्म स्वरूप परम विशुद्ध है, शुद्ध है। शुद्ध यानी वो कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। तो जीव मात्र का स्वरूप शुद्धात्मा है। तो फिर आप ये ज्ञान मिलने के बाद सभी को शुद्धात्मा दृष्टि से देखते हैं, दर्शन करते हैं, पहचानते हैं, समझ गए। तो ये भगवत स्वरूप और शुद्धात्मा स्वरूप में क्या अंतर है? भगवत स्वरूप में वो शुद्धात्मा स्वरूप की क्लैरिटी नहीं है, पहचान नहीं है, वो एक कदम नीचे है। भगवत का मतलब है कि जो दिव्य गुण वाले हैं, लेकिन वो दिव्य गुण की पहचान नहीं हुई है, श्रद्धा नहीं बैठी है, स्पष्ट जानकारी नहीं है। आप समझे? फिर से बताइए, क्या दिव्य स्वरूप क्या आपने बताया? शरीर विनाशी है, हाँ जी। भीतर के आत्म स्वरूप वो अविनाशी है, वही जानने की शक्ति वाला है, लेकिन उसकी श्रद्धा नहीं बैठी है। लेकिन पढ़ने से, सुनने से आपको ये जानकारी मिली है कि वही भगवत स्वरूप है, वही दिव्य स्वरूप है जी। तो फिर आपको ये समझ आने से ये सारे ब्रह्मांड को, रियल स्वरूप को, जो आज तक आपने रियली माना था कि वो शाश्वत है, बस इतना, वो आगे उसकी और थोड़ी गहराई में आपको समझ आई। तो अभी आप उस दृष्टि से, उस नजर से देखते हैं। मतलब भगवत स्वरूप में आपने बताया कि वो मतलब हमारी वो बिलीफ नहीं बैठी है, आपने ये बताया था ना? बिलीफ नहीं बैठी है, बिलीफ बैठती है तब शुद्धात्मा स्वरूप हो जाते हैं। अच्छा, तो उसमें भगवत स्वरूप में ऐसे लगता है कि वो उसमें कुछ मतलब वो मानव से बढ़ के हैं, ऐसा कुछ लगता है। हाँ हाँ, नहीं, मानव से बढ़ के तो ऊपर ही हो गया रियल स्वरूप।
हाँ रियल स्वरूप में ही वो जागृति आ गई। हाँ लेकिन रियल स्वरूप में और ज्यादा गहराई में जानने से पहचान होती है कि ये तो भगवत स्वरूप है, भगवत यानी दिव्य स्वरूप है। तो आप सभी जीव मात्रों को ये दिव्य स्वरूप से देखना शुरू कर देते हैं। स्पष्टता नहीं हुई है। तो भगवत स्वरूप में भी तो शुद्धात्मा का ही गुण आता है ना। हाँ, लेकिन आपने शुद्धात्मा जानने के बाद बोलते हैं कि भगवत स्वरूप में वो है। आप मतलब समझे? नहीं, शुद्धात्मा स्वरूप जो है वो शुद्धात्मा जानने के बाद बोलते हैं, ये ज्ञान। हाँ, करेक्ट करेक्ट। वो और जो शुद्धात्मा भगवत की, स्वरूप है वो ज्ञान मिलने के पहले बोलते हैं आप, ये बोलना। हाँ, तभी तो पता नहीं है। अच्छा, यानी जिनको ज्ञान नहीं मिला है वो शुद्धात्मा स्वरूप बोलेंगे, लेकिन उनको दृष्टि नहीं मिली है, तो उनके लिए वो भगवत स्वरूप ही है। लेकिन वो भावना करते हैं कि मुझे वो शुद्धात्मा स्वरूप प्राप्त हो, जैसे अंतर्यामी परमात्मा की प्रार्थना बोलते हैं ना, जी जी। उसमें आया। तो ये शुद्धात्मा स्वरूप यानी आपने जान लिया कि मैं शुद्धात्मा हूं और जीव मात्र शुद्धात्मा ही है, जी तब आपकी दृष्टि और भी एक कदम आगे बढ़ गई। हाँ जी। अब आगे जैसे आप पुरुषार्थ करते जाते हैं तब आपको समझ में आता है कि ये जो रियल स्वरूप मैंने देखा था, जो भगवत स्वरूप है, वही शुद्धात्मा स्वरूप है, वही तत्व स्वरूप है। तत्व यानी कहीं किसका विनाश होता ही नहीं है। ये रियल का भी विनाश नहीं होता है और रिलेटिव का भी विनाश नहीं होता है। तो आपकी दृष्टि बिल्कुल 100% निर्दोष हो जाती है। समझिए? हाँ, वो अल्टीमेट दृष्टि है जो है। अल्टीमेट है। जैसे कि फिर कुछ टूट जाता है, कुछ गिर जाता है, कुछ बिगड़ जाता है, तो आप विचलित नहीं होते, परेशान नहीं होते, क्योंकि तत्व दृष्टि से आपको समझ में आता है कि किसी का भी विनाश होता ही नहीं है। अवस्था के विनाश से तत्व का विनाश नहीं होता है। ये समझ आ जाती है पक्की। ठीक है, समझ में। एक और पूछ सकता हूँ या बाद में पूछूं अगर टाइम हो तो? जल्दी बोलिए, बोलिए बोलिए जल्दी। हाँ, ये आपने दृष्टि और दर्शन की बात की है, उसमें वही पूछना था मुझे कि दर्शन और दृष्टि कई जगह आता है चरण विधि में, तो वो उसका क्या अंतर क्या है? दर्शन और दृष्टि क्या एक ही होते हैं? दर्शन यानी समझ, और वो समझ से हमारी दृष्टि खुलती है। दर्शन से दृष्टि खुलती है, और दर्शन से दृष्टि खुलने पर आपको दिखाई देता है, समझ में आता है। दर्शन मतलब समझना होता है कि वो, हाँ, दर्शन का मतलब समझना है, टू अंडरस्टैंड। अच्छा, और दृष्टि? वही दृष्टि, दृष्टि यानी जो समझ खुलने से वो दृष्टि खुली होती है, और दृष्टि से आपको दिखाई देगा। अच्छा अच्छा। और दृष्टि से जो समझ में आता है वो आपका दर्शन खुला होता है। अच्छा, तो वो मतलब वो एक ही मतलब वो जो है वो क्रिया है, और वो जो है वो मतलब परिणाम है उसका। अच्छा, हाँ, दृष्टि से दर्शन खुला होता है। ठीक है। दृष्टि प्राप्त होने से दर्शन खुलता है, और वो दृष्टि से दिखाई देगा, समझ में आएगा, दर्शन खुलता है। पूर्ण समझ, केवल दर्शन, और आगे समझ में आ गया, पूरा समझ में आ गया, तो वही दर्शन ज्ञान में परिणमित होता है, अनुभव में। ज्ञान का मतलब अनुभव। जी जी, ऐसा है। ठीक है, ठीक है। जय सच्चिदानंद। एक सच्चिदानंद। मनीषा बहन। जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी, कोटि कोटि प्रणाम। जय सच्चिदानंद। मुझे अदिट तप समझना है। जैसे जहाँ जहाँ अज्ञान मान्यता चलती है और उसके सामने दादा का ज्ञान, विज्ञान, आज्ञा जो भी अप्लाई करते हैं, उस बीच का जो पीरियड है वहाँ तप है, ऐसा मुझे लगता है। तो क्या ये तप है कि भोगवटा है? देखो, समझ का भुगतान सभी को आता है। जब भुगतान को भुगतते हैं तो उसकी असर आती है जी। क्योंकि
मुझे भुगतान हुआ करके आप ऐसा महसूस करते हैं। अभी कवन बोलता है दादी पेट दुखता है, तो आपका पेट दुखता है? जी, उसका दुखता है, पर मेरी ममता के कारण मुझे ही पेट दुखता है ऐसा लगता है। हाँ, ममता के कारण, ठीक है। वो जैसे वो कवन के लिए ममता है ना, तो से मनीषा बेन के ऊपर आपको थोड़ी ज्यादा ममता है कि कवन से कम है? ज्यादा है। अरे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हाँ। आखिर में बोल देंगे कि ये कौशल तुम्हारे बेटे को संभालो, ऐसा करके भी आप बैठ जाएंगे। लेकिन एक मनीषा बेन को कुछ हुआ तो वो आपको ऐसा नहीं कर सकेंगे आप। तो ये उसकी असर आपके ऊपर आएगी। और अदीत तप का मतलब क्या है कि ये जो तप आएगा वो आप इसका भुगतान नहीं करेंगे, उसको आप देखेंगे। ये तो बहुत स्थूल बात है, क्योंकि देह का क्या बोले परिणाम। हाँ भी अगर आप जैसे कि दादा भगवान ने क्या बताया था पता है? उनके सभी दांत हिल रहे थे। दांत, ये दांत का दुख कैसा होता है, बहुत दर्द भारी होता है। इसीलिए आज मैं चॉकलेट खाता था ना, तो मैं सोच रहा था कि ये दादा भगवान चॉकलेट क्यों नहीं खाते थे। तब मेरी ये समझ में आया कि चॉकलेट वो चिपकती है ना, हाँ, तो अगर वो चिपकने वाली चॉकलेट खाएंगे तो शायद वो दांत बाहर आ सकते हैं। ऐसे थे उनके दांत। इसीलिए वो पेपरमिंट खाते थे हमेशा। अच्छा, ओके। यानी सुनिए ना, वो पेपर शुगर वाली जो सॉलिड आती है ना, वही खाते थे। वो चिपकती है वो कभी नहीं खाते थे। वो तो मुझे याद आया, इसीलिए आप समझे। अभी वो उनको जो दांत दिखाने गए ना, तब पता चला कि बहुत सारे दांत, ऑलमोस्ट 95% दांत हिल रहे थे। डॉक्टर ने बोला ये निकाल के हम नया डेंचर बिठा, डॉक्टर ने ना बताया था। तो वो पीड़ा वो कभी भी उनके, हमें किसी को भी पता नहीं चला कि उनको वो पीड़ा में है। तो ये एक प्रकार का उनका अदीत तप था। एक लेवल आगे जाएंगे तो ये जो रिलेटिव है, व्यवहार है, उसके पीछे जो मेरापन है जी, वो मेरेपन की असर होने नहीं देना। तो वो अदीत तप आगे का लेवल का है जी। शरीर का तो नहीं होता है आपको असर, लेकिन ये मान्यता का भी असर नहीं होती है। फिर किसी ने कह दिया, किसी ने आपको बुलाया नहीं, घर पर है, आपको कोई पूछने भी नहीं आया, तो आपको ऐसा लगे अरे कैसे लोग हैं ये, मैं इतना करती हूँ और इनको जैसे कुछ पढ़ा ही नहीं है, मेरी कुछ पढ़ी नहीं है, ये क्या ठीक है ऐसा करके। तो वो कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं। अदीत तप का मतलब क्या है? जो असर, जो व्यवहार मनीषा बेन के साथ होता है, उसकी किसी भी प्रकार की असर आप अपने पर होने देते नहीं है। तो ऐसा बताया, इसका प्रमाण बहुत अच्छा बताया। अदीत तप का परिणाम क्या है? पूर्ण स्वस्थता। और अगर तप किसी ने बाहर देख लिया तो वो अदीत तप कच्चा पड़ गया, कमजोर पड़ गया, समझ, किसी को पता चलेगा नहीं वो अदीत तप है। और वो तप कभी आपको दुखी करता नहीं है। ठीक है, बराबर। तो मोक्ष में जाने के लिए ये तप की बहुत आवश्यकता है ना? वो होएगा धीमे धीमे। अच्छा, रातों रात ओवरनाइट कोई भगवान नहीं बने थे। भगवान का सिक्का लग गया है, लेकिन ये भगवान का सिक्का लगने के बाद टेस्टिंग जो आता है ना, तो धीमे धीमे करके हमें सीढ़ियां चढ़नी है। जी जी, वहां लिफ्ट नहीं है।
और उसकी जल्दबाजी भी नहीं करनी है। जी स्लोली, स्टेडीली, फर्मली बट स्टेबल। यस जितनी सीढ़ी चढ़े वहां से आप नीचे उतरेंगे नहीं, क्योंकि जी ये विज्ञान ही ऐसा मिला है कि आपको गिरने देगा नहीं। बराबर। अगर आपको ऐसा है तो आप सोचो कि आप एक दिन ऐसा करके बैठ जाओ कि चलो मैं निश्चय निर्णय से केवल मनीषा ही हूँ, मैं मनीषा ही हूँ, कुछ गड़बड़ हो रही है, नहीं मैं ये क्या बताता है कि अंदर जो, जैसे कि शादी होने के बाद कोई बोलते मैं कुंवारा हूँ, मैं कुंवारा हूँ, मैं कुंवारी हूँ, मैं नहीं नहीं नहीं, मैं कुंवारी नहीं हूँ, मैं कुंवारा नहीं हूँ, ऐसा है। वो पंडित के जादू से ये परिवर्तन हुआ है। ये तो सारे ब्रह्मांड के स्वामी है, उन्होंने छड़ी घुमाई है और ऐसी घुमाई है कि वो उल्टा नहीं घूम सकती। इट इज इरिवर्सिबल। बोला आप फंस गए, अभी आप मोक्ष में जाने के बाद ही छुटकारा होगा, ये बात हुई है। तो अभी हमें केवल समझना बाकी है, समझ हमारी अधूरी है, इसीलिए असर होती है। जो हमें अडिट तप करना है वो लोग देख लेते हैं, यानी वहां हम थोड़े कच्चे पड़ते हैं, लेकिन धीमे धीमे करके सीख रहे हैं। कोई ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते तो घूम के ऐसा बता दें, देखो पीछे एल लिखा है, आई एम लर्निंग। तो बेकार में हमें परेशान नहीं करते। क्या इतने साल हो गए आपको, ये अभी भी है? बोले अभी भी एल, छोटा एल है लेकिन है अभी, पहले बड़ा है लगाया था, अभी वो छोटा हो गया है लेकिन एल है अभी। बस फिर वो अपनी जान छोड़ देगा, नहीं तो वो जान के पीछे पड़ जाते हैं, ऐसा है। ये झटकने की बात नहीं है, लेकिन जी जी ऐसा है ना, वार कैसा वैसा करके समाधान देखिए, जितना विवाद नहीं हुए ना वो ध्यान रखना है जी। हमें किसी को बताना नहीं है कि मैं दादा का महात्मा हूँ, मैं दादा का पक्का महात्मा हूँ, सिंसियर ओबीडियंट महात्मा हूँ, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारी कमजोरी आज भी ऐसी है कि कोई आंखों से देख सके और कानों से सुन सके। जी जी जी। तो जब तक ये है ना, तभी कोई आवाज नहीं करना है। एवरी टाइम ऐसा करके चलना, नहीं तो हैंड रेज हैंड करके चलना है। हैंड जब करके चलते हैं ना ऐसा, सरेंडर, उसका मतलब है सरेंडर। बाहर ऐसा नहीं करना है, लेकिन बात करना है। यस यस। तो आप ऐसा है ना, वो अंदर से हमने ऐसा कुछ मान लिया है कि अभी तो हमारा अच्छा है, ये क्या अच्छा है, जो तो कोई दो बात बोल के जाएंगे तो सारी रात नींद नहीं आती है। कुछ अगर देख लो, अगर यहाँ व्हाइट स्पॉट आ गया, क्या हो गया करके आईने में बार बार देखेंगे। ये तो हमारी साइकोलॉजी है। यही बात समझना है। इसीलिए क्या बताया है, ये ज्ञान जो है ना, हमारी पारिणामिक दृष्टि खुली की है, हुई है, लेकिन हमने ये व्यवहार के रिलेटिव के सभी परिणामों को देखा नहीं है। राइट। देखना बाकी है, यानी समझना बाकी है। इसीलिए देखने का ही पुरुषार्थ है, समझ का ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है कि अभी देखो, जो जाना है अब उसे देखो। यानी जो जाना है वो हमने समझा नहीं है, नहीं समझ जाना है। वो अगर समझे भी है तो जाना हुआ अनुभव खुला करेगा। राइट राइट। भी समझना बाकी है, इसीलिए अनुभव नहीं है, इसीलिए असर होती है। नहीं तो ज्ञान मिलने के बाद, शुद्धात्मा हो जाने के बाद असर क्यों रहनी चाहिए? छोटी छोटी बातों की असर रहती है। सारे दिन देखो, कोई अवस्था मेरी नहीं है, फिर भी सभी अवस्था कोई ना कोई दाग छोड़ के जाती है, असर छोड़ के जाती है। जी। क्योंकि वो संयोग जब बना था, कारण बना था, वहां असर रूप हुए थे। और वही असर जब आ जाती है तो उसको हम समझ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। तो उसको भी देखना बाकी है, समझना बाकी है, जाना है।
लेकिन समझना बाकी है। समझने का पुरुषार्थ पूरा करना है। इसीलिए सारे दिन उठे के सोए ना तब से देखते रहो बस। जी मनीषा बेन क्या करते हैं वो देखते रहो, और देखने का उसका नोट करो आप, जी फिर असर नहीं होगी। ये देखते नहीं है ना, इसीलिए असर है। देखना बराबर। मतलब पहचानना कि ये रिलेटिव ही है। दादा ने बताया ये रिलेटिव है और ये रिलेटिव ही है, यानी वो रियल नहीं है, यानी वो मेरा नहीं है, वो तो उसकी असर नहीं होगी। जी धीमे धीमे करके आता है, क्योंकि बहुत यारी की है ना ये पुद्गल के साथ, संबंधों के साथ। जी मैं बता दिया दादी फिनिश, शुद्धात्मा चले गया। न खुद मैं शुद्धात्मा हूँ, न वो कवर में शुद्धात्मा है करके। बराबर है। हाँ ऐसा है। वो सत्संग में जय सच्चिदानंद बोल के कमाणी कर लेगा और मैं उसी को देख के खुश हो गए। नहीं बात तो सही है, लेकिन ये हमारी दृष्टि खुली है ना, तो जी, वो जी, दृष्टि जी। से हमें देख लेना है, समझ लेना है जी और वही अनुभव करना है। तो हम जी जी शुद्धात्मा पद मिला है तो शुद्धात्मा स्वरूप होते जाते हैं। जी जी ठीक है Sure. मनीषा बहन। हाँ ओके जी हाँ जी ओके थैंक यू जय सो मच। जय जय सच्चिदानंद। महेश कुमार अनम्यूट कर जो। हाँ बोलिए। अनम्यूट करिए महेश भाई। हाँ हेलो। ओके वेरी गुड। हाँ सुनाई देता है, बोलिए। હા દીપકાનંદજી, એ એક વાક્ય આવ્યું હતું રોજ રોજ આપણે જે મેસેજ આવે છે એમાં 2576 નંબરનું, આત્મા વ્યવહારથી કરતા છે, નિશ્ચયથી અકર્તા છે, એટલે પૂતગલ વ્યવહારથી અકર્તા ને નિશ્ચયથી કરતા છે. એટલે આ મને જરા સમજાવો. પહેલું બોલો। पहला आत्मा व्यवहारથી કરતા છે। हाँ, अभी ये जो करने की बात आती है वो किसके संबंध में है? किसके करने के संबंध में है? आत्मक्रिया की पूतगल क्रिया? ना आ वाक्य છે ખાલી આવું, आत्मा व्यवहार। अरे मैं आपको पूछता हूँ, बोलिए। पहला जो है ना, आत्मा व्यवहार से करता है, निश्चय से अकर्ता है, ठीक है। हाँ। वो आत्मा का कर्तृत्व किसके संबंध में ये बताया है? ज्ञान क्रिया, दर्शन क्रिया। नहीं, तो व्यवहार से करता है क्या? वो तो व्यवहार से नीचे से करता ही है, दोनों में। ये पुद्गल के संबंध में बताया है। ये जो बाहर की पुद्गल क्रिया है ना, वो आत्मा करता नहीं है, वो तो महसूस करते हैं ना। ठीक है, निश्चय से वो करता नहीं है, वो तो समझ में आता है ना पुद्गल क्रिया। बट साहब, हाँ સાંભળું છું। हाँ आप समझे ना, आत्मा शरीर की कोई क्रिया करता नहीं है, ये तो क्लियर है ना। यानी हकीकत में वो कुछ नहीं करता है, पुद्गल की क्रिया, शरीर की क्रिया नहीं करता है, वो तो ठीक है ना। हाँ। इसीलिए बताया कि वो निश्चय से करता है। ओके। अभी व्यवहार से करता बताया, क्योंकि पुद्गल ये अपेक्षा है, हाँ व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट है। आत्मा के बगैर पुद्गल की क्रियाशीलता नहीं है। सो ये अपेक्षा से बताया कि आत्मा व्यवहार से करता है। आप समझे? अभी दूसरा पढ़िए। ये पहला समझ में आ गया ना, ये आत्मा के संबंध में है।
ઓકે. अभी અને आगे એટલે પૂતગલ વ્યવહારથી અકર્તા અને નિશ્ચયથી કરતા છે. पुद्गल, क्योंकि वो पुद्गल अपने आप काम नहीं कर सकता है, ये अगेन अपेक्षा है, और निश्चय से करता है. अभी निश्चय से करता है ना, वो व्यवस्थित का जवाब मिला है हमें. हकीकत में व्यवहार से भी पुद्गल ही करता है. ये आखिर का जवाब है, वो आगे जाके पता चलता है. और आत्मा निश्चय और व्यवहार दोनों से करता है ही नहीं, क्योंकि वो अपने स्वभाव का ही करता है. आप समझ गए? अपेक्षा समझना है. अपेक्षा से ये बात आई है. अपेक्षा समझते हैं ना? हाँ. व्यू पॉइंट. व्यू पॉइंट इज नॉट फाइनल आंसर. फाइनल आंसर इज बाय फैक्ट. और फैक्ट यह है कि आत्मा पुद्गल क्रिया का कुछ कोई करता नहीं है. वो निश्चय से भी नहीं है, व्यवहार से भी नहीं है. समझ गए? उसका मतलब यह है कि जहां नजर करो, जहां जो कोई क्रिया दिखाई देती है, वहां आत्मा कोई चीज का करता है ही नहीं. आप समझे? वो कौन सी अपेक्षा से करता बताया, व्यवहार से करता बताया है ना? क्योंकि व्यवहार से मैं हूं करके आप मानते हैं ना. ज्ञान नहीं है तो मैं हूं करके मानते हैं, और मैंने किया. आप समझे? मैं ही सब कुछ करता हूं, तो उसे व्यवहार से करता बताया, लेकिन निश्चय से करता नहीं है, हकीकत में करता नहीं है. ओके? ओके. ऐसा है. ओके. सर, जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. बोलो, अभी फ्री टाइम आ गया, कोई नहीं है. हाँ, 5-7-8 मिनट है फ्री टाइम का. तो आप कुछ बताइए. मैं क्या बताऊं? नहीं, दूसरे को मत ढूंढो, आप बताइए. देखो, संजीव भाई आ गए. ओके ओके. उनको ज्योति बहन ने बताया था कि आज आपको पूछना है. नहीं, ये एक जेनेरिक प्रश्न है कि लाइक हम हमेशा हमारा मन और चित्त विनाशी वस्तु और चीज में उलझा रहता है, क्योंकि डिस्चार्ज का प्रभाव है उसमें. तो इसमें आप थोड़े टिप्स दीजिए कि हमारा जो डिस्चार्ज आता रहता है उसमें हम शुद्धात्मा और अपने प्रकृति के दोष ही देख पाए. एक बात ऐसी है ना कि ये जो सारा अंतस्करण है, मन वचन काया, अभी मन को देखें तो वो केवल विचार करता रहता है. सही है? अभी उसके विचार करने पर मेरा कोई नियंत्रण है? नहीं है. उसकी क्लैरिटी है हमारे पास? हमें जब पूछा जाता है तो नियंत्रण नहीं है, लेकिन जब अवस्था आती है तब हम उलझ जाते हैं. उसका मतलब क्या है कि तभी जो कुछ हुआ उसकी असर में हम आ जाते हैं. अभी उसकी असर में हम क्यों आते हैं, वो भी क्या है पता है? कि ये सारी संसारी मन वचन काया की अवस्था जो है, जो अवस्था से हमें गुजरना पड़ता है, वो अवस्था का आखिर का परिणाम क्या है? कोई भी अवस्था है, उसका आखिर का परिणाम यही होता है ना कि वो अच्छा लगा या बुरा लगा. ठीक है? अभी हमें ये सोचना है, समझना है कि ये जो अच्छा लगा
वो किसको लगा अच्छा? आपको लगा? नहीं, वो पुद्गल को लगा। यानी संजीव भाई को लगा। हाँ। बुरा लगा तो किसको लगा? संजीव भाई को लगा। अभी हमारी बानी क्या निकलेगी? हमारी बानी ऐसी निकलती है, संजीव भाई को अच्छा लगा, संजीव भाई को बुरा लगा, ऐसी निकलती है? नहीं निकलती। क्या निकलती है? कि ये मेरा है और मेरे को हो रहा है। नहीं, तो मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हाँ, ठीक है। गमो अनगमो, राइट। हाँ, गमो अनगमो होता है। हाँ, अच्छा लगा बुरा लगा, ये जो होता है ना, वहां हमें जागृत रहना है, वहां जागृति रखना है। हाँ। अभी आप मुझे ये बताओ कि जब आप वो डियर पाथ हिल कौन सा 841 क्या है? 890 डियर पाथ। 890 ना? हाँ, 890। कभी आगे पीछे चले गए गलती से भी? नहीं। गलती से भी बाजू के घर ड्राइवे में आपने गाड़ी पार्क की कभी भी? नहीं। ये क्या बताता है कि अपने ड्राइवे, अपने घर का कितना क्लैरिटी है हमें कि कभी गलती से भी दूसरों के जाके आपने गाड़ी पार्क नहीं की। सही है? सही है, बिल्कुल सही। तो वो जैसे हमारा कन्विक्शन हुआ है ना कि यही मेरा घर है और कोई मेरा घर नहीं है, ऐसा कन्विक्शन अभी हमें शुद्धात्मा के प्रति कर लेना है। क्योंकि बहुत साल, बहुत अवतारों से यही प्रक्रिया की है हमने। प्रकृति के पक्ष में जिए, प्रकृति का मानना वही मैं, मेरा मानना है करके। तो अभी जब वो बोलता है ना कि मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, वो जो भुगतान है वो भुगतान मेरा नहीं है, वो भुगतने वाला भी मैं नहीं हूं, वो भुगतान भी मेरा नहीं है, वो संजीव भाई का है। तो आप तुरंत बोलो, तुरंत अंदर से बोल देना है संजीव भाई को अच्छा नहीं लगा, संजीव भाई को अच्छा लगा। ठीक है? तो उससे क्या होगा कि ये जो भुगतान आता है, वो भुगतान के भुगतने वाले आप नहीं होते। ये भुगतान के भुगतने वाले नहीं होने के परिणाम से क्या होता है कि वो भुगतान भुगतने वाले का कर्ता बनते हैं आप समझे? अब ये भ्रांति का कर्तापन नहीं है, ये अजागृति का कर्तापन है। आप समझे? समझा। अजागृति का परिणाम है, भ्रांति का परिणाम नहीं है। क्योंकि आपको पूछा जाता है आप कौन है, तो आप क्या बताते हैं? मैं शुद्धात्मा हूं। अभी एक तरफ आप बोलते हैं कि मैं शुद्धात्मा हूं, तो आप भुगतते नहीं हैं, आप भुगतने वाले नहीं हैं, भुगतान आपका नहीं है। सही है? सही। ये सभी को यहाँ पर जागृत रहकर आपको पहचान लेना है कि ये भुगतान किसका, ये भुगतने वाला कौन, मैं कौन। तो आपका दृष्टा भाव खुला होगा और दृष्टा भाव से आप संजीव भाई के भुगतान के दृश्य को अच्छी तरह से देख पाएंगे, समझ पाएंगे। अभी यहाँ ये बहुत सूक्ष्म है कि यहाँ पर जो आप भुगतते हैं ना अजागृति से, भुगतते हैं नहीं, आभासी होता है। वो भुगतान के भुगतने के कर्ता बनने से, भुगतान के भुगतने का कर्ता बनने से आपको सामने वाला जो निमित्त है वो कर्ता दिखाई देता है। हाँ, सही बात है। यहाँ ये इसका रिफ्लेक्शन है वो।
हाँ समझ गया, मैंने बिलीव किया तो सामने भी वही दिखे। हाँ, यहाँ वो भुगतान जो अगर आपने देखा तो सामने वाला निमित्त तुरंत दिखाई देगा। आप समझ गए? समझ गया। इसीलिए कर्ता पद का आरोपण जो बाहर होता है वो भोक्ता पद की अजागृति का परिणाम है। समझ गए? बराबर, समझ गए। कर्ता पद का आरोप वो भोक्ता पद का उसकी अजागृति का परिणाम है। अगर भोक्ता पद भुगतने वाले को आपने देख लिया, पहचान लिया, समझ लिया, तो बाहर कर्ता पद का आरोप होगा ही नहीं। या इट्स लाइक ए मिरर, तो रिफ्लेक्शन होगा अंदर जो है वो। करेक्ट, यही पुरुषार्थ है। यहाँ मेरापन से, यही के मेरेपन से छूटना है। इसीलिए कहा कि लोग वो बहुत बड़ी बड़ी घारी होती है ना, वो घारी खाते हैं ना, घी वाली। घी वाली वो एक सूरत की मिठाई है, राइट, बहुत बढ़िया होती है। वो कई लोग पचा लेते हैं, लेकिन ये भुगतान को पचा नहीं सकते। आप समझ गए? घारी लेते हैं, रसगुल्ले को हजम कर लेते हैं, फिर वो क्या होता है, वो दूसरा वो काला काला क्या होता है, गुलाब जामुन। हाँ, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन को बहुत सारे ढेर सारे खा लेते हैं, रसगुल्ला खा लेते हैं, वो पचा लेते हैं, लेकिन इतना सा भुगतान हुआ ना, वो बिल्कुल इनडाइजेस्ट हो जाता है। राइट। यानी उसका भुगतने वाले बन जाने के कारण सामने वाला दोषी दिखाई देता है। राइट। इसीलिए व्यवस्थित समझ में आता नहीं है। राइट। तो ये हमारा सारा पुरुषार्थ इसी के ऊपर केंद्रित करना है। छोटा छोटा संजोग में कोई कह जाता है, कोई कर जाता है, हमें बाहर क्यों करने वाले दिखाई देते हैं? क्योंकि हमने जो भुगतान आया ना, उसको भुगता इसलिए वाले बने, भोगव्यू। दिस इज द टेस्ट। भुगतते नहीं है, क्योंकि बोलते हैं आप कौन है? मैं शुद्धात्मा। अगर आप शुद्धात्मा हैं तो आपने भुगतान नहीं किया। बराबर। और ये साबित होता है कि आप शुद्धात्मा हैं तो आपने भुगतान नहीं किया, फिर भी आप बोलते हैं, मानते हैं और उसकी मानसिकता में बह जाते हैं। इसीलिए हाथ में दिया गया मोक्ष महसूस नहीं कर पाते। तो अभी इसको ही देखना है। ठीक है, सही बात है। तो शांति से, जल्दबाजी मत देखने में जल्दबाजी मत करो। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दिवाकरन जी, एक क्विक क्वेश्चन है, टाइम हो गया है, पर एक क्वेश्चन है तो क्विकली आई विल फिनिश 2 मिनट्स। हेतवी का मम्मी है, वो जागृति मम्मी है, नाम मालूम नहीं है। जागृति मम्मी। हाँ, जागृति। सच्चिदानंद दीपक भाई, जय सच्चिदानंद। दीपक भाई, મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં જવા માટે શું પુરુષાર્થ કરવો પડે? खाली 5 આજ્ઞામાં જ રહેવાનું। 5 આજ્ઞામાં જ? उनकी 5 आज्ञा में ही रहना है और ज्यादा कुछ नहीं है। वो मुश्किल है? नहीं, कोई मुश्किल तो नहीं है। अभी बच्चों के साथ बात किया ना, अभी बच्चों के साथ बात किया कि आप बोलो कि मुझे 5 आज्ञा में ही रहना है, दादा मुझे शक्ति दो, वो काम करता जाएगा। इसीलिए दादा भगवान ने स्पष्टता की, आज्ञा के निश्चय, आज्ञा का निश्चय के आज्ञा प्रति निश्चय, आज्ञा पालन का निश्चय, वही आज्ञा पालन है। आप समझे? और वही आज्ञा, और ये भी बताया है, वैसे तो 100% होता है ना, तब पास होते हैं। दादा भगवान ने 30% की छूट दी थी हमें, यानी 70% से की आज्ञा पालन से हम महाविद्य क्षेत्र में जा सकते हैं।
तो अभी 70% तो हम कमा सकते हैं कि नहीं? कमा सकते हैं। रात दिन यही तय करना है, मैं आज्ञा धारक, मुझे आज्ञा में रहना है, दादा मुझे शक्ति दो। ये नहीं कर सकते हम? हाँ कर सकते हैं। बस इतना ही करते रहो, फिर नहीं हुआ ना, उसका गाना नहीं गाना है। हाँ बराबर, ओके। आप यही गाना गाओ, मुझे आज्ञा में रहना है, दादा मुझे शक्ति दो, मुझे आज्ञा में रहना है, दादा मुझे शक्ति दो। बस फिर देखो दादा अंदर कैसे शक्ति प्रदान करते हैं हमें। ठीक है? हाँ ठीक है। जय जय सच्चिदानंद। अभी दीपकानंद जी आपका टाइम हो गया है एक्सपीरियंस का। यस 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 यस। आज कौन भाग्यशाली महात्मा आ रहे हैं? ओके, राजेंद्र भाई। अरे ये तो बहुत बड़े महात्मा है राजेंद्र भाई, वाह। जय सच्चिदानंद। अच्छा बैकग्राउंड रखा है, बताएं। जय सच्चिदानंद। मुझे पहले तो क्षमा करें कि मैं हिंदी में अपने अनुभव कहने वाला था, परंतु वो मैं पूरा नहीं कर पाया, और गुजराती में मैंने जो अनुभव पहले हमारे वसंत भाई साहब को लिख के दिए थे वो मेरे पास लेकिन आप हिंदी में बोल सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं आप, हिंदी में बोलना पड़ेगा आपको। हाँ मैं बोल सकता हूँ, नहीं लेकिन ये सब गुजराती में लिखा हुआ है, उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे क्षमा करें, ये मैंने गुजराती में लिखा हुआ है, तो मैं इस बार गुजराती, फिर नेक्स्ट टाइम अगर मुझे मौका देंगे, नेक्स्ट टाइम अगर मौका देंगे तो ये अनुभव भी मेरे पूरे नहीं है। हाँ जी, आप हिंदी में ही बोलेंगे जो भी है वो, गुजराती में बोलने की जल्दबाजी मत करो। गुजराती वो पढ़ के बोलना का थोड़ा अनुभव बोला जाता है। आप शांति से बोलो अपना। अनम्यूट करिए। जय सच्चिदानंद। इसलिए मैं क्षमा करें, गुजराती में मैं जल्दी पढ़ पाऊँ, टाइम भी कम समय है और 11 पेजेस पढ़ने, सो मुझे क्षमा करें, मैं गुजराती में पढ़ता हूँ। मैं एक दोबारा मुझे अगर मौका मिला, चांस मिला तो मैं हिंदी में कर लूंगा और हिंदी में बताऊंगा। ये मेरे अनुभव पूरे नहीं है, बहुत सारे अनुभव हैं, तो मैं आपसे समय भी मांगूंगा कि 2 बार का समय देंगे, मैं भी बोलूंगा। अभी मैं गुजराती में पढ़ जाता हूँ। ठीक है। तो राजेंद्र भाई आपको प्रॉमिस लेने का है कि आप वापस आएगा हिंदी बोलने के लिए? जी, मेरा प्रॉमिस है। मैं तो दादा के और दादा के महात्मा और आप्त पुत्रों के चरणों में हूँ, हमेशा सेवा में, मैं वापस आ जाऊंगा। ठीक है। अक्रम विज्ञानी, मैं आप सभी के भीतर विराजमान शुद्धात्मा परमात्मा को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जय सच्चिदानंद। अक्रम विज्ञानी, देहधारी परमात्मा, परम पूज्य श्री दादा भगवान, आपनी मारी ऊपर निरंतर कृपा करुणा वर्ष्या करो। परम पूज्य दादाजी ने मळ्या पछी जे समाधान थया, जे अंदर क्षायिक संकित प्रज्ञा द्वारा पॉजिटिव चेंजेस आवी, अंदरथी राजेंद्र बदलाई गयो अने जे ठंडक थई, शांति थई, चिंता टेन्शन बधा मटी गया, तेवो अनुभव पहला क्यारे नहोतो। दादाजी मळ्या त्यारथी आजनी अब घड़ी सुधी वगर कोई मेहनते, कोई पण जप तप त्याग वैराग के कोई पण उपवास अथवा कोई पण जातनी क्रियाकांड वगर जे अंदरनी सुख साहेबी राजेंद्र माणी रह्यो छे, ते एमनी परम पूज्य दादा भगवाननी कृपा करुणा थकी छे। केटली भूलो थई छे अने हजी पण थई रही छे, छतांय एमणे राजेंद्रने क्यारे पण दंड्या नथी, अने एमनी करुणा नथी तो ते शुं छे? बीजुं बरकत वगरना, लायकात वगरना, पात्रता वगरना राजेंद्र ने जगत कल्याण नो निमित्त बनावी रह्या छे। ये दादाजी ની असीम अविरत अपेक्षा रहित अजब गजब कृपा ज छे। राजेंद्र ની મૂડીમાં કેપિટલમાં માત્ર સમર્પણ અને નિશ્ચય માત્ર જ છે। તે પણ દાદાજીના ચરણોમાં અંગૂઠે અડીને જે વિધિઓ થઈ છે, તે વિધિઓના પુણ્ય પ્રતાપે દાદાની કૃપા જ છે।
આજે અંદર જગત કલ્યાણના અખંડ ભાવ ચાલી રહ્યા છે તે પણ એમના વિનય, વિવેકી, સત્સમાગમ કરાવનારા વિતરાગી સત્સંગ થકી પ્રેરણાના જ પ્રભાવ છે. રાજેન્દ્રનું ગજુ જ નથી. આ બધી અવર્ણનીય અદ્વિતીય કૃપા કામ કરી રહી છે. જે કંઈ પણ બની રહ્યું છે અને આગળ બનશે તે આ 11મા આશ્ચર્ય દાદા અકર્તા કૃતારના સર્જેલા આશ્ચર્ય માત્ર જ છે. પરમ પૂજ્ય દાદાજીએ વ્યવસ્થિત કરતાની જે સમજ આપી છે, ઓનલી સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટન્શિયલ એવિડન્સ કરતા છે, એ સમજ જો સમયે હાજર રહે તો પોતાપણું આપોપું ઓટોમેટિકલી નીકળી જાય એવું નક્કી છે. વ્યવસ્થિત કરતામાં અહંકારના કરતાપણાને કોઈ સ્કોપ જ નથી. અહીંયા આ વ્યવસ્થિત કરતાની આ સમજથી ગમે તેવો અહંકારી માનવ નિરહંકારી ભગવાન થઈ શકે છે. આ બધું એમની કૃપાથી જ શક્ય છે. આમાં રાજેન્દ્રનું કશું જ પુરુષાર્થ નથી. મારો જન્મ એટલે રાજેન્દ્રનો જન્મ કરાચી તે વખતના અખંડ ભારત 8/11/1944 દિવસે થયો. દાદાજીની અસીમ કૃપાએ 18 ઓગસ્ટ 1973 દિવસે દાદાથી આત્મજ્ઞાનનો અનુભવ થયો. ઊંચા સંસ્કારી માતા પિતા અને 65 સુખી કુટુંબમાં જન્મ થયો હતો. નાનપણથી જ ધાર્મિક વાતાવરણ, 4-5 વર્ષની ઉંમરથી સંતો મહાત્માઓના ચરણોમાં ભગવાનની ભક્તિનો લાભ મળતો હતો. અમારા માતા પિતાએ બધા જ બાળકોને એટલે 8 ભાઈ અને 1 બહેન ને ઊંચા ઉત્તમ સંસ્કારો આપી ધાર્મિક વાતાવરણમાં ઉછેરીને મોટા કર્યા. જેમ જેમ ઉંમર વધતી ગઈ તેમ તેમ ધાર્મિક વાતાવરણમાં રહેવા છતાંય પ્રશ્નો પણ વધતા જ ગયા. 10 દિશાઓથી તમામ પ્રકારની તમામ પઝલ્સ ને પ્રોબ્લેમ્સ વાળો રાજેન્દ્રનો ખરાબ સમય હતો. કોઈની જોડે બનતું નહોતું, પોતાની ભૂલો દેખાતી નહોતી અને આખો જગત જાણે મારું દુશ્મન છે એવું લાગતું હતું. દાદાજીના શબ્દોમાં કહીએ તો જેમ બટાકા બરહાડમાં બધી જ બાજુથી બફાય તેવી હાલત હતી. બધા જ વિકારો, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, અહંકાર, રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાન બધા જ જાણે ચડી બેઠેલા અને પકડીને મૂળ મારતા હોય એવો તે વખતે રાજેન્દ્રનો અનુભવ હતો. મારી જિંદગીમાં નાનપણથી સ્વામી પ્રેમદાસ સાહેબ, માતા પિતાજીના ગુરુજી, સંત પરશુરામજી, સંત ગંગારામજી, પછી એક બેંગાલી સંત કલકત્તાથી સર્વાંગી વિકાસ સંઘના સંચાલક, ત્યાર પછી આચાર્ય રજનીશજી ઓશો, એ બધાનો સત્સંગનો લાભ મળ્યો. હા, ટેમ્પરરી ક્યારે મન શાંત તો ક્યારે બુદ્ધિ શાંત એવું તકલાદી લાગતું, પણ ક્યાંય સંપૂર્ણ સમાધાન ના મળ્યો અને પ્રશ્નો તો ઊભા જ રહ્યા. 1970-1973 વર્ષોમાં આચાર્ય રજનીશજીના સત્સંગમાં જતો હતો. ત્યાં સમાધાન ન મળતા ત્યાં જ મારા ઓળખીતા એક દાદા શેવારામ છાટપાર સાહેબ, એ મારા મિત્રના પિતાશ્રીને મેં 2 પ્રશ્નો પૂછ્યા અને તેના ઉત્તરમાં એમણે કહ્યું કે મામાની પોળમાં દાદા ભગવાન છે, ત્યાં દાદા ભગવાનને જઈને મળો. દાદાજી મામાની પોળમાં નહીં પણ ખત્રી પોળ એટલે ભાઈજી દરોગાની પોળમાં મળ્યા. ઉપર 3જે માળે જે અત્યારે દાદા લે છે ત્યાં એકલા બેઠા હતા, જાણે મારું કલ્યાણ કરવા માટે એકલા રાહ જોઈને બેઠા હોય. એમના દર્શન માત્રથી હું ખોવાઈ ગયો, જગત વિસ્મૃત થઈ ગયું. થોડા સમય પછી એમણે કહ્યું કે કંઈ પૂછવું છે? ત્યારે 2 પ્રશ્નો મેં દાદાને પૂછ્યા કે આ ખરેખર રિયલી સ્પીકિંગ જગતનો કરતા કોણ છે, અને બીજું કર્મ કોને કહેવું? દાદાજીએ કહ્યું, તને જ્યારે તારા સ્વરૂપનું ભાન થશે, ખરેખર તું કોણ છે, ત્યારે આપમેળે તને બધું જ સમજાઈ જશે. બધી પ્રોબ્લેમ, પઝલ્સ સોલ્વ થઈ જશે, ચિંતા, ટેન્શન બધા મટી જશે. અને 2-3 દિવસમાં જ જ્ઞાન વધી હતી. પરમ પૂજ્ય અક્રમ વિજ્ઞાની દેહધારી પરમાત્મા શ્રી દાદા ભગવાન થકી એમની કૃપાથી 18 ઓગસ્ટ 1973 દિવસે સાંજે જ્ઞાન વિધિ થઈ. પોતાની ખરી જાતની ઓળખાણ થઈ, સ્વાનુભવ થયો, શુદ્ધાત્માનો અનુભવ થયો. દાદાજીએ 5 આજ્ઞા સમજાવી અને ત્યાર પછી અંદર અનએક્સપેક્ટેડ
અનબિલીવેબલ ટ્રાન્સફોર્મેશનની શરૂઆત થઈ ગઈ. 5 આજ્ઞા સમજ્યા પછી રાજેન્દ્ર દાદાને સર્વભાવે સંપૂર્ણપણે સમર્પિત થઈ ગયો. પછી દાદા સિવાય બીજું કશું જ ગમતું નહોતું અને દાદાનો રાજેન્દ્ર દીવાનો થઈ ગયો. જેમ જેમ દાદાજી સાથેનો સત્સંગ સમય વધતો ગયો તેમ તેમ રાજેન્દ્ર ઠરતો ગયો અને દાદાજી માટે આસ્થા, વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા, સમર્પણ બધા વધતા જ ગયા. તમામ પ્રકારના તમામ ખુલાસા સમાધાન વગર પૂછે વગર માંગે દાદાજીના સત્સંગમાં બધું જ સહેજાસહેજ મળતું ગયું. પરમ પૂજ્ય અક્રમ વિજ્ઞાની દેહધારી પરમાત્મા શ્રી દાદા ભગવાન સાથેના ઘણા બધા અનુભવ છે. એક નાની પુસ્તિકા બની જાય, પણ હમણાં તો જે યાદ આવે છે તે લખ્યું છે. નવજીવન સોસાયટીમાં અમારી ઘરે પરમ પૂજ્ય દાદાજીનો સત્સંગ હતો. ત્યાં દાદાજીએ ટાઈમ અને સ્પેસનો વિજ્ઞાન સિમ્પલ દાખલો આપીને સમજાવ્યું. અમારા પિતાજી સમજી ગયા. તેઓ અમને નાઇજીરિયા જવા માટે રજા નહોતા આપતા. ત્યાં ટાઈમ અને સ્પેસનો દાદાનો સિમ્પલ દાખલો સમજી ગયા અને ત્યાર પછી કહ્યું કે ભલે દાદાજી છોકરાઓ આફ્રિકા જાય. રાજેન્દ્રને નાઇજીરિયા જવાની અનુમતિ મળી. દાદાજીએ વિધિ કરી. રાજેન્દ્ર પહેલા કુમારભાઈને ત્યાં કાનોમાં નોર્થ નાઇજીરિયામાં રહ્યો. 8 મહિનાની ઇંતજારી બાદ લેગોસ સાઉથમાં નાનપણનો એક મિત્ર મળ્યો અને ત્યાં 8 મહિના પછી ત્યાં સહેજાસહેજ જોબ મળી ગઈ. ઘર, ગાડી, ડોલર્સમાં પગાર ઇન્સ્ટન્ટલી બધા મળી ગયા. વગર મહેનતે વ્યવસ્થિત બધું ભેગું કરી આપ્યું. રાજેન્દ્રની અંદર તાલાવેલી લાગેલી હતી કે ચાન્સ મળે અને દાદાનું સત્સંગ સ્વાધ્યાય નાઇજીરિયામાં પણ શરૂ થઈ જાય. 1985માં એવો એક એવિડન્સ બન્યો કે દાદા રામ ગ્વાલાની અને એમના પત્ની સીતા ભાભી સાથે દાદાજીના સમજાવેલા પ્રતિક્રમણ અનુભવ શેર કરતા એમની બેનપણી સાથેની પ્રોબ્લેમ પ્રતિક્રમણ કરતા સોલ્વ થઈ ગઈ. આ અનુભવથી સીતાબેન અને રામ ગ્વાલાની સત્સંગ માટે આકર્ષાયા. દાદા રામ, સીતા ભાભી, રાજેન્દ્ર અને શાલિની એટલે ફાઇલ નંબર 2, આ 4 જણ સત્સંગ સ્વાધ્યાય માટે ભેગા થતા. ભારતમાં તે વખતે હાજરા હજુર દાદા ભગવાનની કૃપા કરુણા નાઇજીરિયામાં વરસવા શરૂઆત થઈ. ત્યાં એક દિવસે તાવ આવતા ડોક્ટર નીનાબેન કોઠારી પાસે દવા લેવા ગયો હતો. ત્યાં એમને ગંભીર અને શાંત સ્વભાવી અને હાસ્ય વગરના મોઢાને જોઈ દાદાજીને મેં વાત કરી. દાદાની વાતો સાંભળી ડોક્ટર નીનાબેન ખૂબ પ્રભાવિત થયા અને એમણે એમના હસબન્ડ શ્રી વસંતભાઈ કોઠારી સાથે વાત કરી અને વસંતભાઈ આવ્યા પછી સત્સંગની ગાડી જોરમાં ચાલી પડી. વસંતભાઈએ શુક્લાજીને વાત કરી, પછી કપિલ ભાર્ગવ, સુભાષ ભાર્ગવ, વર્માજી, વીરવાનીજી, ગોદુભાઈ અને પ્રેમ પંજાબી, લખી પર્યાની, સુરેન્દ્રલાલ બગેરિયા, દીપક દડિયા, બંકિમ ઢોલકિયા, કિશન ભઠીજા, લાલજી પટેલ, અર્જુનભાઈ હરજાની, ઘણા બધા સત્સંગીઓ આમ ભેગા થતા ગયા. દાદાજીનો સત્સંગ સ્વાધ્યાય જામતો ગયો. દર વર્ષે રજાઓમાં રાજેન્દ્ર 1 મહિનાની રજામાં ઇન્ડિયા આવતો. ત્યાં દાદાજીને બધી વાતો બતાવતો કે દાદાજી આપનો સત્સંગ આપતાવાણીમાંથી સાંભળી લોકો આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે અને એમના પ્રતિક્રમણથી લોકોના ઘણા બધા કામ થાય છે. દાદાજી રાજેન્દ્રની વિધિ કરતા અને કૃપા વરસાવતા. ત્યાં હિન્દી ભાષી લોકોના આગ્રહને લઈ દાદાજીની કૃપાથી આપતાવાણી 1 અને 2 હિન્દીમાં ટ્રાન્સલેટ થઈ ગયા. દાદા ભગવાનનું નામ લેતા ઘણા બધા કામ થયા છે અને થઈ રહ્યા છે અને આગળ પણ થશે. એવો 100% કોન્ફિડન્સ વધતું જ જાય છે. અંદર એવું ફિટ થઈ ગયું છે કે દાદા પોતે જ એમના જગત કલ્યાણ કાર્યમાં બધું જ કામ કરી રહ્યા છે અને અમારા જેવા સમર્પિત મહાત્માઓને, આપતપુત્રોને ઘેર બેઠા નિમિત્ત બનાવી રહ્યા છે. બધાને દાદાની આ સત્સંગની વાતો અદ્ભુત, અપૂર્વ, પ્રેક્ટિકલ, લોજિકલ, એડવાન્સ, ડીપ સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ, સો સિમ્પ્લિફાઈડ, ઇઝીલી એપ્લિકેબલ લાગે છે. તરત પરિણામ આવી જાય છે. દાદાજી પણ કહેતા હતા કે ધીસ ઇઝ ધ ઓનલી કેશ બેંક ઓફ ડિવાઇન સોલ્યુશન્સ. રાજેન્દ્ર નાઇજીરિયામાં આ જ્ઞાન પછી પણ નોનવેજ ખાતો હતો, ડ્રિંક્સ લેતો હતો. છતાંય ભારતમાં બેઠા બેઠા દાદાજી આ બરકત વગરના રાજેન્દ્ર પાસેથી આ જગત કલ્યાણના અદ્ભુત કાર્ય કરાવી રહ્યા હતા. અનબિલીવેબલ
and surprising, simply magical was happening there in Nigeria. આમ તો દાદા જ્ઞાન પછીના નાઇજીરિયાના ઘણા અનુભવો છે, પણ થોડા ઘણા અહીંયા જે લખ્યા છે, આ જ્ઞાન કેટલું જબરદસ્ત છે, ક્રિયાકારી છે અને મહેનત વગરનો માર્ગ છે, લિફ્ટ માર્ગ છે. એક વખત રાજેન્દ્ર અને કેશવભાઈ આપતપુત્ર એમના એક મિત્રને ત્યાં નાઇજીરિયામાં જમવા ગયા હતા. બપોરનું ટાઈમ હતું. ત્યાં અમારી પાછળ 2 નાઇજીરિયન જવાન માણસો અમારી સાથે મિત્રની ઘેર અમારી સાથે જ અંદર આવી ગયા. તો અમારા પુત્રે જેમને ત્યાં અમે જમવા ગયા હતા તો પૂછ્યું કે આ 2 જણ કોણ છે? કાં તો પેલામાંથી એક જણાએ પિસ્તોલ કાઢી, બીજાએ મોટો છરો કાઢ્યો અને કહ્યું, ડોન્ટ ટ્રાય ટુ બી સ્માર્ટ, જસ્ટ કીપ મમ એન્ડ કીપ ઓન ગિવિંગ અસ વોટ એવર વી આસ્ક યુ. દાદાજીનું આપેલું આત્મજ્ઞાન અને આજ્ઞા તાજા એટલે હું શુદ્ધાત્મા છું ચાલુ થઈ ગયું અને બધામાં શુદ્ધાત્મા દેખાયા, જ્ઞાન હાજર થઈ ગયું, પ્રતિક્રમણ પણ ચાલુ થઈ ગયા અને નીચે ઉપર ચારે ફ્લેટ્સ વાળાઓના સોનું, ડાયમંડ્સ, ડોલર્સ, વિડીયોઝ બધા લૂંટી લીધા. અને બાદમાં અને પછી નીકળતી વખતે રાજેન્દ્રને એક રોબર કહે છે, થેન્ક યુ ફોર યોર કોઓપરેશન. એટલે રાજેન્દ્ર પણ હિંમતથી કહ્યું, વોટ થેન્ક યુ, you have taken away all our money, my diamond ring and everything, and how we'll go back home? ત્યારે રોબર 200 નાયરા મને પાછા આપ્યા અને કહ્યું કે ગો બાય ટેક્સી. બધો માલ સામાન વેનમાં લઈને આ રોબર્સ બધા જતા રહ્યા અને આ બનાવ પછી અમે 2 ભાઈઓ નોર્મલ હતા, જાન બચી તો લાખો પાએ, વ્યવસ્થિતનું જ્ઞાન હાજર રહ્યું. એક બીજા બનાવમાં મારી કારનો ટાયર પંચર, રસ્તા ઉપર ટાયર પંચર થયો, ડ્રાઈવરને પંક્ચર બનાવી અને ગાડી ફેક્ટરી પર લઈ આવી રહ્યો હતો તો ત્યાં ચાલતા ફેક્ટરીમાં જવાનું નીકળ્યો. ફેક્ટરી નજીક હતી, ત્યાં રસ્તામાં એક જ 6 ફૂટનો લાંબો નાઇજીરિયન સામે આવી મને કહે છે, ઓ યુ વ્હાઇટ મોંકી, યુ ટેક અવે ઓલ અવર મની ટુ યોર કન્ટ્રી એન્ડ વી રિમેન પુઅર. હું સમજી ગયો. મેં કહ્યું, માય બ્રધર, આ બધું જે તને જોઈએ તે લઈ લે, છાના માના બધું આપી દેવામાં જ દાપણ છે. એટલે એણે મારા ચશ્મા, વોચ, મની પર્સ બધું જ લઈ લીધું અને પછી કહ્યું કે યુ કેન ગો નાવ. ત્યાંય દાદાનું જ્ઞાન હાજર, કોઈ ઉશ્કેરાટ નહીં, કોઈ ભય નહીં. હું શુદ્ધાત્મા છું અને બધામાં શુદ્ધાત્મા જોતો રાજેન્દ્ર પોતાની ફેક્ટરીએ પહોંચી ગયો. આવા ઘણા બધા અનુભવ છે, પણ બીજી ફેરે હું આપને બતાવીશ કે આ દાદાની કૃપા કેવી રીતે કામ કરે છે. માત્ર આપણો નિશ્ચય એક જ કે 5 આજ્ઞામાં રહેવું છે, ફાઇલોનો સંભાવી નિકાલ કરવું છે. આમ દિવસો, મહિનાઓ, વર્ષો વીતતા ગયા અને 2 જાન્યુઆરી 1988 ના દિવસે દર્દનાક, દિલના ટુકડે ટુકડા કરી નાખે એવા ભયંકર, હતાશ કરનારા સમાચાર નાઇજીરિયામાં મને મળ્યા કે દાદાજી પરલોક પધાર્યા છે. રાજેન્દ્ર નાના છોકરાની જેમ જાણે અનાથ થઈ ગયો હોય એમ રડી પડ્યો. ત્યારે અંદરથી જોરદાર, સ્પષ્ટ અવાજમાં દાદાજીએ કહ્યું, હું ક્યાંય ગયો નથી, હું તારી અંદર જ છું, પણ હવે તારી જવાબદારી વધી. તરત જ રાજેન્દ્ર ભારત પહોંચ્યો, પણ ત્યાં પિક્ચર કશી ક્લિયર નહોતી. પૂજ્ય કનુ દાદાજી, આપતપુત્રો, મહાત્મા નીરુબેન, સંપત્તિઓ, વડીલ મહાત્માઓ બધા જ શાંત હતા. વાતાવરણ બહુ ગમગીન હતું અને કોઈ ડિસિઝન નથી. અને હવે શું, કોઈ ડિસિઝન નહોતી. રાજેન્દ્ર પાછો નાઇજીરિયા પહોંચ્યો અને થોડા સમય પછી નાઇજીરિયામાં એ વખત પરમ પૂજ્ય દાદા ભગવાનની વિડીયો કેસેટ જે બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટમાં મને મળી તે જોવા મળી. વિડીયોમાં એક મહાત્માએ પૂછ્યું કે દાદાજી, આપના ગયા પછી અક્રમ વિજ્ઞાનનું શું થશે? ત્યારે એમણે કહ્યું, અમારા 4 આપતપુત્રો બહાર નીકળશે, આપતપુત્રો આખી દુનિયામાં ફરશે અને તમામ જગતના લોકોના કામ થશે. રાજેન્દ્રે આપતપુત્ર શ્રી મહેશભાઈ પટેલ અને આપતપુત્ર શ્રી ભરતભાઈને ફોન પર વાત કરી કે આવું મેં ત્યાં જોયું છે અને સહેજાસહેજ 4 આપતપુત્રો, ખરેખર 4 જ આપતપુત્રો, શ્રી મહેશભાઈ પટેલ, શ્રી ભરતભાઈ મહેતા, શ્રી મિનેશભાઈ મહેતા અને શ્રી પ્રદીપભાઈ પારેખ નાઇજીરિયા પધાર્યા. દાદારામ ગોલાનીની લીડરશિપમાં ફક્ત એક જ મીટિંગમાં 5 જ ત્યાંના સત્સંગીઓએ રાજેન્દ્ર દ્વારા રિટર્ન ટિકિટ, વિઝા વગેરેની રકમ જમા થઈ ગઈ. એક સત્સંગી સુરેન્દ્રપાલ બજેરિયા તો એકલા હાથે $5000 ઓફર કરી. ત્યારે દાદારામે કહ્યું કે નહીં, એકના નહીં, પણ જેમની પણ ઈચ્છા હોય તે બધાએ થોડી થોડી રકમ કાઢવી. લેગોસ નાઇજીરિયાની રાજધાની છે. તે વખતે 1 લાખ ભારતીય એકલા લેગોસમાં રહેતા હતા.
મિની ઇન્ડિયા કહીએ તો ચાલે. આપતપુત્ર સાહેબોના ચારિત્ર બળથી, સંયમથી, સરળતા અને સહજતા અને ઉણોદરી તપ, આવા બધા ગુણોથી બધા જ ત્યાંના લોકો આકર્ષાયા અને પ્રભાવિત થયા. આપતપુત્રો ઘણો લાંબો સમય 2-3 મહિના ત્યાં રોકાતા અને ત્યાંના જોબ જે કરી રહ્યા હતા વેપારીઓ જોડે જુદા જુદા સમયે સત્સંગ, લેડીઝ જોડે જુદા સમયે સત્સંગ, સ્કૂલ કોલેજ જનારા સ્ટુડન્ટ્સ જોડે જુદા સમયે સત્સંગ, વડીલો જોડે જુદા સમયે સત્સંગ, જુદી જુદી જગ્યાએ સત્સંગ કાર્યક્રમ ગોઠવાઈ જતા. ત્યાં બધાની પાસે મોટા ઘર, બધાની પાસે નોકર ચાકર, ગાડીઓ, ખાસ તો લેડીઝ પાસે ઘણો ફ્રી ટાઈમ. એટલે આપતપુત્ર સાહેબ પરમ પૂજ્ય દાદા ભગવાનના અક્રમ જ્ઞાન વિજ્ઞાનની સૂઝ સમજ ડિટેલ્સમાં ઘણા બધા દાખલાઓ સિમ્બલીઝ આપીને લોકોને સમજાવતા. આપતપુત્રો તે વખતના સત્સંગીઓ સાથે નાઇજીરિયાના જુદા જુદા સિટીઝ એન્ડ ટાઉન્સમાં સત્સંગ ગોઠવતા. રાજેન્દ્ર પણ બિઝનેસ એવો હતો કે 4 જ દિવસ કામ કરવાનું, બાકી દિવસ ફ્રી. એટલે એટલું ફ્રી એટલે સુંદર સગવડ બધી રીતે ગોઠવાઈ જતી. દાદાજીએ આપતપુત્રોને જબરદસ્ત ઓલરાઉન્ડ ટ્રેનિંગ આપેલી હતી. જેમ કવિરાજ પદ ગાયું છે ને કે આપતપુત્રોનું જોશીલું જુલુસ વિશ્વનું કલ્યાણ કરનાર છે. અને તેવી જ રીતે અખંડ બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરનારા, ઉણોદરી તપ કરનારા, પરમ વિનય સાચવતા, સુંદર સ્વરમાં પદ ગુંજન 24 કલાકની સ્વરૂપ કીર્તન ભક્તિ કરતા કરતા એકલા ભારતીયોને જ નહીં પણ ત્યાંના લોકલ નાઇજીરિયન પ્રજાને પણ દાદાના રંગમાં રંગી દીધા અને મોહી લીધા. વારાફરથી બધા જ આપતપુત્રો, લગભગ બધા જ આપતપુત્રો નાઇજીરિયા વિઝિટ કરી ગયા. આપતપુત્રોની સૂઝ સમજ તે હવે દાદાનો સત્સંગ ભારતમાં અને આખી દુનિયામાં વસતા ભારતીયો દાદાજીનું દિવ્ય સમ્યક દર્શન ઘર બેઠા એમના જ વિલેજમાં, ટાઉનમાં, સિટી લેવલ પર બધા જ લોકો અત્યારે પામી રહ્યા છે. પૂજ્ય શ્રી કનુ દાદાજી આપતપુત્રો સાથે 2 વાર નાઇજીરિયા પધાર્યા અને જ્ઞાન વિધિઓ થઈ. આજે પણ અમારા આપતપુત્ર સાહેબો આખી દુનિયામાં અને ભારતમાં ગામે ગામ જગત કલ્યાણ અર્થે ફરી રહ્યા છે. લોકોને જે પણ એમને મળ્યા છે તે બધા સુખી થઈ ગયા છે અને બધાનો વ્યવહાર પહેલા કરતા ઘણો સુધર્યો છે. મોક્ષ માર્ગમાં આગળ વધી રહ્યા છે. અને હાલમાં તો અત્યારે આ 9 મહિનામાં આ આપતપુત્રોનો યુટ્યુબ અને ઝૂમ ઉપર સત્સંગ ઘર બેઠા લોકોને મળ્યા કરે છે. અને અમારા ઘણા મહાત્માઓ રજનીકાંતભાઈ જેવા સાહેબ જેવા પણ આ કેટલું બધું જબરદસ્ત કલ્યાણકારી કામ કરી રહ્યા છે. એ બધા ધન્ય છે. એમને બધાને મારા નમન છે. હવે તો બસ પ્રગટ અક્રમ વિજ્ઞાની દેહધારી પરમાત્મા શ્રી દાદા ભગવાનની આજ્ઞામાં જ નિરંતર રહેવું છે. તે એકમાત્ર દ્રઢ નિર્ણય નિશ્ચય પ્રતિજ્ઞા સ્વરૂપે રહ્યા કરે છે. નિરંતર 5 આજ્ઞામાં રહેવા માટે અને જગત કલ્યાણનું પરમ નિમિત્ત બનવા માટે સર્વે શ્રી સિમંદર સ્વામી પરમાત્મા, પરમ પૂજ્ય શ્રી દાદા ભગવાન, સર્વે ભાવિ તીર્થંકર સાહેબો, સર્વે શ્રી શલાખા પુરુષો, શાસન દેવી દેવતાઓ, સર્વે શ્રી આપતપુત્ર મહાત્માઓ, સર્વે શ્રી સંગપતિ સાહેબો, સર્વે દાદાના કલ્યાણ મૂર્તિ મહાત્માઓ, સર્વે સિદ્ધો સંતો મહંતો અને સર્વે જીવ માત્રની અંદર બિરાજમાન શુદ્ધાત્મા ભગવાન પાસે પ્રાર્થના વિનંતી કરું છું, શક્તિઓ માંગુ છું કે આપ સર્વેની મારી ઉપર કૃપા કરુણા વરસાદ કરજો અને પરમ વિનયપૂર્વક જગત કલ્યાણની ભાવના જ ભાવ્યા કરું છું. પરમ વિનય અને હું કાંઈ જાણતો નથી તે ભાવે આપ સૌને દાસાનુદાસ રાજેન્દ્રના સાષ્ટાંગ પ્રણામ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ. પહેલી વાત તો એ છે કે સોરી ફોર ધેટ. धन्यवाद राजेंद्र भाई. पहली बात तो यह है कि आपको जब ज्ञान मिला वो 18 अगस्त 1973 आई बिलीव आप उन 2103 में से है महात्मा जो दादा भगवान ने बताए थे कि जिनकी परमिट दादा भगवान को मिली थी. तो आप तो बड़े भाग्यशाली है, उसमें कोई शंका नहीं है. और आपकी भावना भी बड़ी अच्छी है कल्याण की, और जिसके आधार पर आपको नाइजीरिया जाना हुआ और वहाँ पर सारा सत्संग का जो भी शुरुआत हुई वो आप बड़े अच्छे निमित्त बने. और वो काम भी कैसा बना
एक परिस्थिति आई, दादा का प्रतिक्रमण आपने समझाया और उनका काम हो गया, और ये काम हुआ देखकर दादाराम कॉलोनी बड़े प्रभावित हुए और यात्रा, सत्संग की यात्रा वहां शुरू हो गई। और ये भी आपने बताया कि ये दादा भगवान के नाम से काम अपना चलता है, बोलते हैं, वो कविराज ने लिखा है। लेकिन ये नाम सिर्फ नाम नहीं है, ये पूरा यश नाम के बल से इतना बलवान है, ये गलती से भी किसी ने दादा भगवान का नाम ले लिया तो उनका काम होने वाला ही है, और ये हमारा सबका अनुभव है। और एक और अच्छी बात बताई, दादा भगवान ने तो बताया कि ये दिस इज द कैश बैंक ऑफ डिवाइन सॉल्यूशन, और आपने बताया कि ये दी ओनली बैंक, ओनली बैंक ऑफ डिवाइन सॉल्यूशन। की बात सही है, ऐसा करके हम दादा भगवान को एक्सक्लूसिव बनाना नहीं चाहते, लेकिन यह बात है कि हम ये समझ सकते हैं क्योंकि आज महावीर भगवान की उपस्थिति नहीं है, लेकिन उन्हीं का, उनका ही यह, उसे क्या कहते हैं, शासन उनका ही है। नहीं, वो तो बात सही है, उसको क्या बोलते हैं, उनका ही शासन चल रहा है, वीर शासन कहा है। और दादा भगवान ने बड़े प्यार से और बड़ी जिम्मेदारी से कहा कि हम वीर शासन के श्रृंगार है, आभूषण है, और वही वितराग विज्ञान जो महावीर भगवान के हृदय में था, ब्लैक एंड व्हाइट स्पष्टता से बाहर खुला किया है। इसीलिए हमारा सभी का काम होता है, और जो दादा को मिले भी नहीं है उनका विज्ञान को सुनकर, महात्मा के अनुभवों को सुनकर वो जो प्रेरित हुए हैं और दादा के पीछे निकल पड़े हैं, तो उनको भी वही अनुभव हो रहा है। और ये सबसे बड़ा आश्चर्य है, जैसे कहा कि ये 11वां आश्चर्य करके बताया जाएगा, और बिल्कुल है। और हम तो यही कहते हैं कि हमें सबको इनके विज्ञान का लाभ लेना है, क्योंकि ये बड़ी स्पष्टता से बताया कि ये क्रियाकारी है। तो हम ये समझ सकते हैं कि महावीर भगवान का विज्ञान कैसा क्रियाकारी होगा, और ये हमें पक्का अनुभव देता है। और हमें तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि बस दादा के कहे अनुसार पीछे पीछे चलो, उन्होंने जो साधन दिए हैं वो करते रहें। आपके अनुभव में बताते हुए आपने कहा कि ऐसी परिस्थिति में किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई ऐसा विचित्र प्रतिभा हो ही जाता है, लेकिन वो परिस्थिति में आपने बताया दादा बिल्कुल हाजिर हो गए, किसी भी प्रकार का रिएक्शन न आते हुए उन्होंने जो मांगा उसको व्यवस्थित समझ के आपने बड़े प्यार से दे दिया। और नहीं, ये बड़ी बात है, क्योंकि इट्स नॉट सिंपल, आई बिलीव। और अपने केशव आनंद जी ने अपना अनुभव करते हुए बताया कि उनके सिर पर 4 घंटा गन रख के बैठे थे, 4 आवर्स। 4 आवर्स, अभी 4 आवर्स को क्या बोलेंगे हम? 2 मिनट सब कुछ लेके गए, हाँ, चंपल तक लेके गए, उनकी नाइट ड्रेस में ही खाली रहे थे, पूरा घर खाली करके ट्रक लेके आए थे, और ट्रक में सब सामान रख करके उनको सिर्फ नाइट ड्रेस में रखा, चंपल तक नहीं थी। वो जब गए थे तो बहन के पास तो हैरान हो गई कि क्या बात है, नाइट ड्रेस में आया है। बोला कि मेहमान आए थे। वो हमारे कोठारी साहब ने भी ऐसा अनुभव बताया कि मेहमान आए थे। ये ज्ञान का प्रसाद है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वरना, और वे तो बड़े भाग्यशाली है, वो दादाजी की बड़ी निकट से सेवा की, उनको ये अवसर मिला, तो ये बात है। और दादा भगवान के जाने के बाद ये जो आपकी अनुभूति है कि सभी, आपने ये भी बताया कि अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि लोगों ने दादा भगवान को देखा नहीं है। और कबीरदास ने भी लिखा है, दादा भगवान ने कहा है कि हमें पहचानने के लिए हम पर जो आश्रित है, हमारी आज्ञा का जो पालन करते हैं, उनसे उनका अनुभव सुन लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि दादा भगवान का विज्ञान क्या है
और अभी के अब तक के जो अनुभव जो हमने सुने वो बड़ी स्पष्टता से बताता है कि दादा भगवान कैसे काम कर रहे हैं। वो जीवंत विज्ञान छोड़ के गए हैं जीवंत लोगों के बीच, महात्माओं के बीच, और हमें तो बड़े लघुता से सारे विश्व में रहना है कि लोग ये विज्ञान को पाए। और ये सारा सानी परिवार का बड़ा भाव था और भाव आज भी है। मेरी तो बहुत दिल से इच्छा है कि आप थोड़ा थोड़ा बाहर निकले और अपना अनुभव बताए तो बहुत लाभकारी होगा। और धन्यवाद राजेंद्र भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप हमें आशीर्वाद दीजिए सभी कि आपकी तरह ही सारा समय रहें, ज्ञान में रहें दादा की। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, शालिनी बहन ने आपको पीछे से बहुत हेल्प की है, क्योंकि उनके बिल्कुल, शालिनी बहन ने नाइजीरिया में जो मुझे हेल्प की वो तो बहुत ही सुंदर। उन्होंने सब कुछ भुला करके आपके पुत्रों की और मेरा कहना हरदम मानना और बहुत बहुत सेवा की। और उनका अपना सत्संग होते हुए भी उन्होंने ये कहा जैसे कि यही मेरा सत्संग है, तो मैं उनको भी धन्य मानता हूँ। बात सही है, सही है, सही है। उनको कोई क्वेश्चन एक्सपीरियंस सुनेगा बाद में दीपकानंद जी। श्योर, डेफिनेटली शालिनी बहन, लेकिन आप हिंदी में लिखना, गुजराती में नहीं, ताकि हम हमारा हिंदी में क्राइसिस होता है, तो हिंदी में आएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र भाई। वी विल इनवाइट यू अगेन, प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट आल्सो। जय सच्चिदानंद। थैंक यू वेरी मच राजेंद्र भाई, आप मेरा नमन स्वीकार कीजिए। जय सच्चिदानंद। सभी महात्माओं को मेरा प्रणाम। जय सच्चिदानंद। राजेंद्र भाई, आपका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। तो आपने तो और हमने भी सुना है आपका काम नाइजीरिया में, जो सब महात्माओं ने जिसने एक्सपीरियंस बताया है, तो वो आपका वो आप दे ऑलवेज से कि राजेंद्र भाई हम घर पे आके दादा की बात कर दे, घर पे आके बात। सो आपने तो जगत कल्याण तो कितना पहले से स्टार्ट कर दिया था। अभी गिरीश भाई का भी आया कि राजेंद्र भाई, थैंकफुल फॉर राजेंद्र भाई फॉर ड्रॉइंग अस टू दादा भगवान सत्संग इन नाइजीरिया। सो आपका अभी हिंदी में सुनने का अभी हाँ जी, मैं हिंदी रखूंगा। और मैं सभी इन महात्माओं का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इनकी वजह से मैं दादा की आज्ञा में रहा। और अपने पुत्रों का भी मैं बहुत आभारी हूँ कि उनके आने पर मैं कभी सत्साधन विधि नहीं करता था। वो सब एक ही रात में सब विधि याद हो गई, चरण विधि याद हो गई। मैं सभी आपके पुत्रों का, ज्ञानी महात्माओं का बहुत बहुत उपकार मानता हूँ और मेरे लिए वो बहुत ऊंचे निमित्त हैं। परम पूज्य दादा भगवान तो मुझे अभी बस ऐसा ही है कि मैं दूसरे जन्म में दादा भगवान मुझे जरूर मिलेंगे, 100% मिलेंगे और मेरा मोक्ष मार्ग में सब अड़चने हटा करके मैं मोक्ष में चला जाऊंगा। ये मेरी दादा को, सिमंदर स्वामी भगवान को, आप सभी को मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे आशीर्वाद दें। बिल्कुल, एक और बात करना मैं चाहूंगा दड्डी भाई। एक बार दादा भगवान को पूछा था कि दादा आप ये जन्म में तो हमें मिले, हमारा काम हुआ, आगे हमारा क्या होगा? तो दादा भगवान ने बताया था कि अक्रम विज्ञान का कैप्टन मैं हूँ, आपको मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं ही आपको ढूंढ लूंगा और उठा के ले जाऊंगा। जय हो दादा भगवान। जय। अभी राजेंद्र भाई, अनुबेन का मैसेज आया, हमारे पूरा कुटुंब परिवार सब समर्पित है दादा भगवान को। और हमारी माता जी भी यही बोल के गई कि मैं दादा भगवान के पास जाऊंगा। करेक्ट करेक्ट। हाँ जी, रजनीकांत भाई साहब कुछ बोल रहे थे। सॉरी। अनुबेन बोलती है कि आप सत्संग एवरीडे करते थे इवनिंग में। सो आपको तो जगत कल्याण का तो बहुत है, पर अभी आपका एक्सपीरियंस भी मोर सुनेगा। तो अभी टाइम हो गया है, तो दीपकानंद जी 3 मंत्र बोलिए और आप फॉलो कीजिए राजेंद्र भाई। नमो वितरागाय। राजेंद्र भाई फॉलो करिएगा। We lost it. Okay, you can follow. Namo Vitragay. Namo Vitragay. Namo Arihantanam. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Ayariyanam. Namo Vajjayanam. Namo Vajjayanam. Namo Loe Sawa Sahunam.
नमो लोए सब्ब सावणम ऐसो पंच नमुक्कारो ऐसो पंच नमुक्कारो सौव पावपणासणो सव पाव पणासणो मंगलाणं च सवेसिं मंगलाणं च सवेसेम परमां हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कल